नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मालदा जिला प्रशासनिक भवन में बंदर को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मालदा जिला प्रशासनिक भवन परिसर में दुर्लभ प्रजाति के एक बंदर देखे जाने को लेकर लोगों में भारी कौतूहल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह से ही मालदा जिला प्रशासनिक भवन परिसर में इस बंदर को इधर उधर घूमते देखा गया। इस अनोखे बंदर को देखने के लिए आसपास के लोग काफी संख्या में वहां इकट्ठा होने लगे। बताया जा रहा है कि यह बंदर रविवार रात से ही पास के काली मंदिर में दिख रहा है। इधर बंदर को देखते ही लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बिस्कुट खाওয়ালাম কলা দিলাম বিস্কুট খেয়েছি কলা খেলো না কলা দিলাম সকালবেলা না দেখিনি। भाजपा ने टेलीमेडिसिन परिसेवा किया लॉन्च। हेल्पलाइन के जरिए मिलेगी 24 घंटे सुविधा। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेलीमेडिसिन सेवा को काफी हद तक कारगर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवा लोगों तक पहुंचाने की पहल भी शुरू कर दी है। गुरुवार को सिलीगुड़ी स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक शंकर घोष ने टेलीमेडिसिन सेवा हेतु सिलीगुड़ी के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। यह हेल्पलाइन नंबर है 9883457642, जो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं और लोगों को तत्काल स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा रात 9 से सुबह 9 बजे तक व्हाट्सएप अथवा मैसेज के जरिए लोग स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। আমাদের এখানে শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে আছে ডেটটা হচ্ছে 18 মে, যতদূর সম্ভব কালিম্পংয়ের মহিলা তিনি মারা যান। সেই সময় থেকে এটা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় হাইয়েস্ট পিক 120-130 এর বেশি কিন্তু যেত না, কিন্তু তখন ছিল মানুষের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক। ফলে সেই আতঙ্কের থেকে কিন্তু অনেক সময় আমরা বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি হতে দেখেছি। আমরা তখন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মূল দায়িত্ব ছিল মানুষের মধ্যে এই আতঙ্কটাকে দূর করা এবং রোগীদের পরিষেবা দেওয়া। সেই সময়কার সাথে দ্বিতীয় দফার কোভিডের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে হাইয়েস্ট পিক উঠে যাচ্ছে 300, 350, 400-র কাছাকাছি। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রায় 3 ডবল কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে একটা অংশের মনে আতঙ্ক থাকলেও একটা বড় অংশের মানুষের মধ্যে কিন্তু সেই আতঙ্ক নেই। এখন কিন্তু আর বাঁশ লাগানো হয় না, ব্যারিকেডিং করা হয় না, ফিতা লাগানো হয় না, মার্ক করা হয় না, কিচ্ছু করা হয় না। কিন্তু একটা বিষয় যেটা বারবার বলা সত্ত্বেও করা হচ্ছে না, আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না, কিন্তু আমি জানি না যে যারা এই কাজ করছেন তারা এই ব্যাপারে কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এইবারে দেখা যাচ্ছে পুরো পরিবার আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি, অনেক বেশি। পরিবারের একজন হলে 3 জন 4 জন 5 জন হয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে বলতে আমার দ্বিধা নেই, এক একটা টেস্টের রিপোর্ট 4 দিন 5 দিন 6 দিন পরে আসছে। যারা টেস্ট করছে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং টেস্টের সংখ্যা কি পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আজকে আমার ভাবতে অবাক লাগে যে 400-র কাছাকাছি যখন বা বেশি চলে যাচ্ছে কোভিডের টেস্ট। কোথায় হচ্ছে কোভিডের টেস্ট? নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, এছাড়া সরকারি স্তরে যে কোভিডের টেস্ট আমরা আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলো করছিলাম, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি হসপিটালে কোভিডের টেস্ট হচ্ছে না, মানে RT-PCR হচ্ছে না। কিছু কিছু জায়গায় র্যাট করা হচ্ছে, সেটাও অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে কিটের উপরে ডিপেন্ড করছে। সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে অথচ টেস্ট সেন্টারের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
एक तरफ आंशिक लॉकडाउन, दूसरी तरफ कोरोना महामारी और इन सभी से इतर युवा वर्ग जिन पर हावी हो रहा है ड्रग्स। देश के कई जगहों में लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू, लेकिन पश्चिम बंगाल में चल रहा है आंशिक लॉकडाउन और इसी का फायदा उठाते हुए सिलीगुड़ी शहर के युवा खुले आसमान के नीचे ड्रग्स लेते हुए हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। नशे की हालत में धुत इन्हें यह भी नहीं पता कि यह क्या कह रहे हैं। यह घटना सिलीगुड़ी के सूर्यचंद पार्क के पीछे महानंदा नदी के सामने वाली मैदान की है, जहां पर आप इन युवाओं को देख रहे हैं जो नशे की हालत में हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से हो सकता है कि बच्चे बिगड़ जाएं, लेकिन जरूरत है कि आप अपने बच्चों पर खुद ध्यान दें और उनके हरकतों पर नजर रखें। आए दिन सिलीगुड़ी से भी दूसरे जगहों पर ब्राउन शुगर, टैबलेट, कफ सिरप, गांजा इत्यादि नशीले पदार्थ की तस्करी में लोग गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन ड्रग्सों की सप्लाई होती कहां है। अगर ड्रग्स की सप्लाई ही बंद हो जाए तो इस युवा पीढ़ी को हम बचा पाएंगे। बंगाल प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बने यूपी बिहार में गंगा में बहाए गए शव। पश्चिम बंगाल प्रशासन के लिए भी गंगा नदी में बहाकर आने वाली शव सिरदर्द बन गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर गंगा घाटों पर शव के अंतिम संस्कार के बजाय परिजन उन्हें जल प्रवाह कर दे रहे हैं। गंगा हरिद्वार से पश्चिम बंगाल तक आई है, इसलिए कई शव बंगाल भी पहुंच चुके हैं। राज्य में ऐसा न हो इसलिए प्रशासन पहले से अलर्ट पर है और गंगा घाटों पर निगरानी की जा रही है। बंगाल के मालदा में मृतकों की लाशें गंगा की धारा के साथ बहते हुए पहुंच सकती है। राज्य सचिवालय नवान्नों की ओर से मालदा प्रशासन को सतर्क किया गया है। गंगा किनारे पर नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। मालदा के मानिक चौक और पंचानंदपुर गंगा घाटों पर कड़ी निगरानी खड़ी की जा रही है और नाव पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि कोरोना मृतकों के शव बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में तैरते हुए देखे गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि यह सारे शव कोरोना रोगियों के हैं। हालांकि अभी तक प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरता हुआ शव पश्चिम बंगाल का सिरदर्द बन सकता है। बता दें कि बंगाल में गंगा नदी की एंट्री पॉइंट है मानिक चौक घाट। यह मालदा जिले में है। इस इलाके में गंगा करीब 1 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए कड़ी नजरदारी बहुत जरूरी है। मालदा जिले के सभी वीडियो को यह निर्देश दिया गया है कि यदि शव आते हैं तो उन्हें एक जगह रखा जाए, यहाँ पर मिले शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। मानिक चौक घाट से फरक्का बैरेज 22 किलोमीटर नीचे की तरफ है। कहीं तैरते हुए फरक्का बैरेज में शव होकर बांग्लादेश की तरफ ना निकल जाएं, इसका ध्यान रखने के लिए फरक्का बैरेज को भी कहा गया है। साथ साथ गंगा किनारे स्थित सभी थानों को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल नदी किनारे करीब 10 से 12 नाव के साथ निगरानी चल रही है। হ্যাঁ, যেটা জেলা প্রশাসনের কাছেও খবর এসেছে কি এই ধরনের কিছু মৃতদেহ ভেসে আসার সম্ভাবনা হতে পারে। তো সেই অনুযায়ী জেলা প্রশাসন তৎপর এবং রাজ্য প্রশাসন এবং আমাদের গভর্নমেন্টের যে রকমভাবে দিশা নির্দেশ রয়েছে সেইভাবে আমাদের যদি কোনো মৃতদেহ চলে আসে আমরা সেইভাবে সেই বডিগুলোকে ডিসপোজ করব। সেটা জেলা প্রশাসন ঠিক করবে। এখনো এই ধরনের কোনো ঘটনা আমরা পাইনি, এখনো কোনো মৃতদেহ আমরা এখনো পাইনি, কিন্তু ভূতনি মানিকচক ঘাটগুলোতে নজরদারি রাখা হবে। হ্যাঁ, যেটা জেলা প্রশাসনের কাছেও খবর এসেছে কি এই ধরনের কিছু মৃতদেহ ভেসে আসার সম্ভাবনা হতে পারে। তো সেই অনুযায়ী জেলা প্রশাসন তৎপর এবং রাজ্য প্রশাসন এবং আমাদের গভর্নমেন্টের যে রকমভাবে দিশা নির্দেশ রয়েছে সেইভাবে আমাদের যদি কোনো মৃতদেহ চলে আসে আমরা সেইভাবে সেই বডিগুলোকে ডিসপোজ করব। সেটা জেলা প্রশাসন ঠিক করবে। এখনো এই ধরনের কোনো ঘটনা আমরা পাইনি। दुष्कर्म कांड को लेकर सिलीगुड़ी के बारोबिसा में भारी तनाव, घर बुलाकर 2 बहनों से रेप का आरोप, आरोपी फरार। पिछले मंगलवार की शाम 2 युवतियों को घर बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने को लेकर के डावग्राम 2 नंबर अंचल के बारोबिसा के रामनगर कॉलोनी में भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना के बाद बुधवार को पीड़िता के परिवार वालों की ओर से इस बारे में एनजीपी थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पीड़ित दोनों युवतियों की एक ही परिवार की 2 बहनें हैं।
हालांकि एक वयस्क है जबकि दूसरी की उम्र 16 वर्ष है। बताया जाता है कि गुरुवार को छोटी बहन बीमार पड़ी। बाद में पुलिस ने दोनों लड़कियों को शारीरिक परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पॉक्सो धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में इलाके में छापेमारी कर रही है। इलाके के रहने वाले शंभू चक्रवर्ती ने बताया कि आरोपी युवक पवन अधिकारी और भोलासा इलाके में सामाजिक गतिविधियों में शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के घर और व्यापारी प्रतिष्ठान में तोड़फोड़ की। इधर पीड़िता की मदद को सिलीगुड़ी शहर में एक महिला सुरक्षा स्वयंसेवी संगठन आगे आया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि घटना से इलाके में दहशत फैली हुई है। उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981।
एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट में छापेमारी, कई गिरफ्तार। आंशिक लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय के बाद भी सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट खुले रहने पर प्रधान नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बाजार बंद कराया है। पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी ओर रेगुलेटेड मार्केट के व्यवसायियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन व्यवसायियों का कहना था कि आंशिक लॉकडाउन का जो समय सीमा निर्धारित किया गया है, उस कम समय में ट्रकों से सामानों की लोडिंग अनलोडिंग संभव नहीं है। इसके लिए ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बाजार खुलने के समय दोपहर 2 बजे तक बढ़ाने की मांग की है। रेगुलेटेड मार्केट कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस बारे में प्रशासन को पत्र भी भेजा गया है। पुलिस हस्तक्षेप के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। ज्ञात हो कि पिछले 2 दिनों से हम आपको सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर भीड़ भाड़ और बिना मास्क के भी लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे। रेगुलेटेड मार्केटेर समस्या হচ্ছে এখানে মেন কথা যে এখানে চাষিদের মালটা বেশি আসে। এখন একটা চাষি মিলে তো একটা গাড়ি মাল পাঠাতে পারে না। ধরেন 10টা চাষি মিলে একটা গাড়ি মাল পাঠায়। এখন 10টা চাষির মাল তো একটা ঘরে নামে না, 10টা ঘরে নামে। তো 10টা ঘরে নামতে গেলে একটা গাড়ির মাল কমসে কম 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় লাগে। এখন চাষির মাল নামার পরে যদি বিক্রি না হয়, যদি অবিকৃত থেকে যায়, সেই মালটা পেরিসেবল গুডস নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে গেলে সে আর এই মন্ডিতে আসার চেষ্টা করছে না। তাতে আমার শ্রমিক ভাইরা বলছে তাহলে তো আমরা না খেয়ে মারা যাব। এখানে যারা ওয়ার্কার, যারা কাজ করে, ডেলি কার বেসিস হিসেবে কাজ করে, তারা বলছে এইভাবে কাজ দিলে তো আমরা কাজ করতে পারবো না, মালটা নামছে না, আমরা মালটা প্যাকিং করবো কেমন করে। এই নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে আমরা SDO সাহেব এবং ডিএম সাহেবকে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি যে আমাদের টাইমটা 7টা থেকে 2টো অবধি করে দেওয়া হোক। যদি 7টা থেকে 2টো অবধি করে দেয় তাহলে হয়তো কিছুটা রাহত আমরা পাবো। পুলিশ প্রশাসন আসছে, তাদের তো করার কিছু নাই, তাদেরকে অর্ডার দিচ্ছে মার্কেট বন্ধ করো, বিনা মাস্কে যারা আছে তারা ধরো। আশা করি আমাদের মার্কেটে বিনা মাস্কে কোনো শ্রমিক ভাইও নেই, কোনো মালিকরাও নেই, কোনো খরিদ্দারও নেই। সবাইকে আমরা আগের থেকে ডিক্লারেশন দিয়েছিলাম, ভাই কমসে কম মাস্কটা পরতে হবে। आंशिक लॉकडाउन के कारण सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में वाहनों में यात्रियों का टोला लग रहा है। सुबह से वाहन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। सिलीगुड़ी शहर के गुरु नानक चौक में ऑटो चालकों का भी यही हाल है। यात्री नहीं मिलने से ऑटो चालकों का हाल काफी चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि प्रशासन व सामाजिक संगठन की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की ही सलाह दी जा रही है। বলতে রাস্তাঘাটে একদমই লোকজন নেই এখন। আর আমাদের তো এখানে সারাদিনে দুটিপো হয় না। হ্যাঁ, আর এই করোনার জন্য এসব হচ্ছে। আর লোকজন নেই, তাতে তো এক হিসাবে লোকজন যেন না বেরোয় তাতে তো ভালোই। তাড়াতাড়ি যেন আমাদের এই বিপদ থেকে যেন আমরা তাড়াতাড়ি উদ্ধার হতে পারি। সে তো 100 বার আর্থিক ক্ষতি তো হচ্ছে। সারাদিন আমরা 100 টাকা নিয়েও বাড়ি যেতে পারছি না। আমাদের পরিস্থিতি দাদা খুবই খারাপ গো, বলার মতো না। কি বলবে দেখেন, এখানে সকালে 6:30টার সময় গাড়ি লাগিয়েছে, এখন বাজে কটা, এখন অবধি আমি নম্বর পাই না গাড়ি। এইভাবে চলে তো আমাদের খুব অসুবিধা। এখন চারদিকে লকডাউন এই লকডাউনে তো মানে একদম না মানলে হয় না, আর মানলে পরে তো আমাদের এই অবস্থা। এখন আমরা কি করব কি না আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। अलीपुरद्वार जिले के बक्सा बाग परियोजना के जंगल से 19 हाथियों का एक झुंड गुरुवार को रायमतांग चाय बागान में घुसकर जमकर तांडव मचाया। चाय बागान में हाथियों के झुंड के घुसने की खबर मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गए। बताया जाता है कि दोपहर तक हाथियों का झुंड रायमतांग चाय बागान में खड़ा रहा। वनकर्मी हाथी के झुंड को जंगल भेजने की लगातार कोशिश कर रहे। चाय बागान में मिला मृत तेंदुआ, श्रमिकों में दहशत। अलीपुरद्वार जिले में
हाटी पोता रेंज के जयंती चाय बागान में तेंदुए के शव बरामद किए जाने को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर को श्रमिक जब जयंती चाय बागान में काम करने पहुंचे तो अचानक उन्होंने चाय बागान के अंदर एक मृत तेंदुआ देखा। घटना के प्रकाश में आने के बाद छोड़कर लोग आनन फानन में भाग गए। फौरन इस बारे में हाटी पोता रेंज अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। तेंदुआ का मृत शव बरामद किए जाने की खबर मिलते ही वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मृत तेंदुए को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग के कर्मचारी घटना की जांच शुरू कर दी है। तृणमूल ने कोरोना पीड़ित के लिए खोला सहायता केंद्र। तृणमूल कांग्रेस ने कोरोना पीड़ितों के लिए सार्वजनिक सहायता केंद्र शुरू कर दिया है। गुरुवार को फालाकाटा ब्लॉक के 5 माइल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में सहायता केंद्र के लिए हेल्पलाइन चालू किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव संजय दास ने बताया कि ब्लॉक के असहाय कोरोना पीड़ितों को भोजन और दवा सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सहायता केंद्र से आंशिक लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके लोगों की भी मदद की जाएगी। করোনা নামক যে মহামারী শুরু হয়েছে তে পাচ্ছেন না, তাদের খাওয়ার অভাব হয়েছে। তার দরুন আমরা আজকের এই আপনাদেরকে ডেকেছি এবং আমাদের ব্লগের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবক ভাইরা এসেছে, তাদেরকে ডেকেছি যে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যে সমস্ত পরিবার তাদের অসহায় মানুষ যারা আছে, যারা ধনী পয়সাওয়ালা তারা নিজেরা ওষুধ কিনতে পারছে, কিন্তু কিছু অসহায় মানুষ আছে যারা নিজের বাড়িতেই আছে, হোম আইসোলেশনে আছে, কিন্তু ওষুধ কিনতে পারছে না, খাদ্য তাদের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে না। আমরা আজকে হেল্পলাইনের মাধ্যমে তাদের ঔষধ নিজেরা উদ্যোগে কিনে দেব এবং খাদ্য যাদের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছে পারছে না, নিজেরা কিনতে পারছে না, আমাদের এই হেল্পলাইনের সদস্যরা তারা গিয়ে তাদের চাল ডাল নুন যা লাগে আমরা পৌঁছে দেব। আমরা নিজেদের উদ্যোগে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেব। वन विभाग ने लकड़ी से लदा वाहन जब्त किया। तस्करी में संलिप्त 3 साइकिल भी हुई बरामद। वन विभाग के दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने बीरपारा दलमोड़ के गारो बस्ती इलाके में छापेमारी कर लकड़ी से लदे एक छोटे ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने बीरपारा डालमोड़ क्षेत्र में छापेमारी कर एक छोटे वाहन का पीछा किया। वन कर्मचारियों को पीछे आते देख वाहन चालक ट्रक छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। वन कर्मियों ने लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया वाहन से लकड़ी की 25 सिल्ली बरामद की गई है। दूसरी ओर कालचिनी ब्लॉक के संताली नाकाडाला क्षेत्र में वन विभाग के पाना मोबाइल रेंज के कर्मचारियों ने लकड़ी लदी 3 साइकिल बरामद की। वन विभाग के कर्मचारियों को देखते ही तस्कर अपनी साइकिल छोड़कर फरार हो गए। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।